Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 11th problem of cash book from intermediate first year accountancy. Now let us move towards our problem. 11th problem. Prepare 3-column cash book of Ravi Traders from the following particulars. So immediately we will write the format of triple column cash book. ठीक है, इसके दो डिविजन्स है, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड. डेबिट साइड वी नीड टू ड्रॉ 6 columns: डेट, receipts, LF, discount allowed, cash, bank. Similarly, on the credit side, date, payments, LF, discount received, cash, bank. Now let us move towards the first statement. It is that cash balance 15,000 1st September 2018. Bank balance CR. CR is identification of overdraft. ये क्रेडिट बैलेंस है, उन्हें खुद मेंशन कर दिया CR. We need to write this balance on the credit side of the cash book. We'll proceed with it. So the date is 1st September 2018, and here we'll write to balance brought down B/D, and in the cash column, what is the balance of cash? 15,000. We'll write 15,000, and after this 1st September 2018 by balance brought down B/D, and in the bank side we'll write 25,000. Done. अब हम balances लिख डालें. After that we'll move toward the next transaction, that is on 4th September. Received cash from Bhaskar 3,900 in full settlement of his account 4,000. अब इससे हमको समझने क्या आ रहा, भास्कर के पास से 4,000 रुपये आना था, मगर आए कितने? 3,900. तो दैट मीन्स 1,100 इज डिस्काउंट, राइट. सो पैसे हमारे बिजनेस में आए. तो जब कोई बिजनेस में पैसे आएंगे, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द रिसिप्ट साइड 4th September 2018 टू, ये पैसे दिए कौन? भास्कर. टू भास्कर्स account, the discount is 100 and we have received 3,900. Done. Then after that, the next transaction is on 6th September. Goods sold to Prakash for cash 2,800. 2,800 के goods आप प्रकाश को बेचे for cash. So business में आया क्या? पैसे आए, right? The date is 6th September 2018 to क्या करें आप? गुड्स बेचे. तो हियर वी हैव टू राइट सेल्स अकाउंट. कितने के गुड्स बेचे आप? 2,800 के गुड्स बेचे. देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट पेड 500 September 7th. तो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, दिस इज योर एक्सपेंडिचर. सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट साइड 7th September 2018 बाई क्या पे करें आप? इंटरेस्ट. बाई इंटरेस्ट अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज रुपीज 500. 500 इज द अमाउंट. देन आफ्टर दैट 7th September इंटरेस्ट पेड हो गया. 10th September रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक ट्रेडर्स कैश, चेक, डिस्काउंट अलाउड, चेक सेंड टू बैंक. सिंपल एंड इजी. बिजनेस में पैसे आए, चेक आया, डिस्काउंट भी हुआ. तो जब कोई बिजनेस में पैसे आएंगे, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द रिसिप्ट साइड. व्हाट इज द डेट? द डेट इज 10th September. 10th September 2018 टू ये पैसे क्या चेक दिए कौन हमारे? कार्तिक ट्रेडर्स. कार्तिक ट्रेडर्स अकाउंट. डिस्काउंट कितना हुआ? द डिस्काउंट इज 400. द अमाउंट ऑफ check is 4,800, 1,800. So discount is 400, amount is 1,000,
1800 and check is 4800 done. 1400 1800 4800 1800 4800 400. Now we will move towards our next transaction, that is on 14th September. Cash deposited into bank 4000. ठीक है, बिजनेस में से कैश लिया, आप बैंक को गए, डिपॉजिट कर डाले. Whenever there is a direct connection between cash box and bank, contra entry exists. Contra entry होते कि immediately हम journal entry पास करते. What is the journal entry of cash deposited bank account debtor to cash account? Bank is a receiver और cash हमारे business में से गया. Debit the receiver, credit what goes out. So ये journal entry को गौर से देखो आप. ये journal entry में to किसके साथ है? Cash. So we will write here to cash and here by bank as per journal entry. By bank. To cash by bank. Now what is the amount and date? 14th is the date and amount is 4000. So in the date we will write 14th September 2018. Here also we have to write 14th September 2018 and in the LF column we will write C. C is the identification of contra entry. Contra entry की identity है, पहचान है, तो इसीलिए हमको LF column में C लिखना है, right? And always remember, as per the rule of contra entry, we need to enter the amount in the opposite column. ठीक है? So what is the amount? The amount is 4000. अभी इधर आपको क्या दिखा? बाई बैंक, तो इसका अमाउंट कैश कॉलम में एंटर करना है 4000. इधर क्या दिखा? टू कैश, तो इसका अमाउंट बैंक कॉलम में एंटर करना है आपको, दैट इज 4000. डन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 16th September. परचेज गुड्स फ्रॉम चैतन्या एंड पेमेंट इज मेड थ्रू पेटीएम 2500. ठीक है, चैतन्या के पास से आप गुड्स खरीदे और पैसे कैसा दिए? पेटीएम से पे करे, तो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होते. सो सिंपल एंड इजी. पैसे हमारे बैंक अकाउंट में से गए, पैसे गए तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते. द डेट इज 16th September 2018. हियर विल राइट बाई. अब आप करें क्या? पैसे जाने के पीछे रीज़न क्या है? गुड्स खरीदे आप. ठीक है, सो हियर विल राइट परचेजेस अकाउंट. और अमाउंट किधर एंटर करना है? बैंक कॉलम में करना है, क्योंकि वो तो आप यूपीआई यूज़ करें ना, तो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते पैसे, दैट इज 2500. डन. नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 24th. इशूड चेक टू मनोहर 2800, डिस्काउंट रिसीव 200. तो 24th के दिन क्या हुआ? आप चेक इशू करें. किसको? मनोहर को. सो हियर विल राइट बाय मनोहर, Manohar's account, right? What is the amount? The amount is 2800 and the discount is 200. So in the discount section we'll write 200 and आप क्या इशू करें? चेक इशू करें, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाते हैं, इसलिए बैंक कॉलम में हम लिख रहे हैं दैट इज 2800. एवरीथिंग इज डन. नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम फर्स्ट. पहले हम डिस्काउंट कॉलम का टोटल करेंगे. ठीक है, एंड दैट इज 500 फॉर डिस्काउंट अलाउड and 200 for discount received. Then after that we'll do the total of the cash column. Cash column 15,000 plus 3,900 plus 2,800 plus 1,800. ये पूरा डेबिट साइड का टोटल है और यही ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है हम वो दोनों तरफ लिख देते हैं. सो 23,500 will be the total and we have to write this total on the both sides. 23,500 and from this 23,500 we have to subtract the total of credit side in the cash column. देखो ये 23,500 में से ये क्रेडिट साइड जितना भी अमाउंट दिख रहा ना उसको माइनस कर डालो. -500 minus 4,000. सो द आंसर विल बी 19,000. ये क्या है? ये बैलेंस है.
बैलेंस की डेट, लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट रहती बोला मैं आप लोगों को, तो 24 सितंबर 2018, 24 September 2018. What is this? This is balance. By balance C/D carried down. Then after that we'll do the total of बैंक. बैंक का टोटल अगर आप गौर से देखें तो क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा, तो जो ज़्यादा है वो दोनों तरफ आ जाता. विल सी 25,000 प्लस 2,500 प्लस 2,800, 30,300. 30,300 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. अब ये ज़्यादा है तो हम दोनों तरफ लिख देते हैं 30,300, एंड फ्रॉम दिस 13,300 वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस 4,800 and 4,000. So minus 4,800 and 4,000. So the answer will be 21,500. 21,500. ये क्या है? ये बैलेंस है. So you have to consider the last date, that is 24th of September 2018, and here we'll write to balance carried down C/D. Always remember, बैलेंस कैरी डाउन लिखिए बात, ये आपकी जिम्मेदारी है बैलेंस ब्रॉट डाउन करना. तो क्या होता, जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड अपीयर होता टोटल के नीचे, और जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो डेबिट साइड अपीयर होता टोटल के नीचे. सो व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो हियर वी विल राइट 1st 10 2018 एंड बाय बैलेंस brought down B/D. What is the balance of bank? That is 21,500, एंड ये जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो डेबिट साइड आ जाता. द डेट विल बी 1st 1/10/2018 एंड टू बैलेंस brought down B/D. And what will be the amount of this balance? That is 19,000. Done. From this we have completed the 11th problem of cash book. In the next problem we will deal with 12th problem. So till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.